थैंक यू बोजी। जस्ट अ सिमिलर केस, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम मिनिमा से ही रिलेटेड होते हैं और मेनली मिनिमा के ही आपको क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमा एज एन अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा टफर साइड जाती है कैलकुलेशन। तो अप्रॉक्स केस मैंने प्रीवियस केस के अंदर मैंने लिया है। इस केस में हम बात करेंगे वंस अगेन अबाउट मिनिमा, where the situation says the case is about diffraction bands by single slit, and the case is saying a single slit of width 0.1 mm is illuminated by a parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom, and diffraction bands are observed on a screen 0.5 meter from the slit and the distance of third dark band from the central bright band. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन थीटा ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम ये निकालें तो हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, बी साइन थीटा इज गिवन बाय एन लेमडा। सो अगर हम बात करें फॉर एन इक्वल्स टू 3, तो एंगल थीटा कैन बी रिटन एज 3 लेमडा बाय बी, बिकॉज यहाँ पे हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेंगे फॉर द गिवन वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ। हियर साइन थीटा विल बी वेरी स्मॉल। सो अगर थीटा हमारे पास आ जाता है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम देखें इफ दिस स्लिट विड्थ बी और ये हमारी स्क्रीन है और स्क्रीन से इफ दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये होगा हमारे पास टोटल सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, और ये वाला जो पॉइंट होगा व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। इफ दिस एंगल इज थीटा, एंगुलर विड्थ फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो एक्स कैन बी रिटन एज डी थीटा। तो यहाँ पे हमको निकालना है एक्स फॉर थर्ड मिनिमा। थर्ड मिनिमा विल बी capital D multiplied by 3 lambda by B. So numerically if we use screen distance is 0.5 multiplied by 3, lambda is 6 into 10 to power minus 7 divided by slit width is 10 to power minus 4. So here this 3 and is 9 multiplied by 10 to power minus 3 meter. That's the answer for this problem. Thank you, Poji. Here also slightly varied question, but similar cases ही हैं. This diffraction minima by a single slit. Once again we take up where angular width theta है, तो sin theta को हम n lambda by b लेते हैं, where n is the nth minima position. Question says light of wavelength 6000 into 10 to power minus 8 centimeter falls normally on a single slit and produces a diffraction pattern. It is found that the second diffraction minima is at 60 degree from the central maxima. It is asking the first minima produces at theta 1, तो theta 1 का approximate value क्या होगा। अब देखें for second maxima we use, हम लेते हैं b sin theta equals to n lambda where n is equals to 2, तो because second maxima है, this b sin theta is equals to 2 lambda. Theta is given to us as 60 degree. So sin 60 degree is equals to 2 lambda by b, and here sin 60 is root 3 by 2. So this gives us lambda by b is equals to root 3 by 4. Now it is asking अगर first minima theta 1 पे है, तो you can write for first minima here n will be taken as 1, so sin theta 1 will be written as n को 1 डालोगे this lambda by b, और lambda by b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, it is root 3 by 4. So theta 1 का वैल्यू आ जाता है हमारे पास sin inverse of root 3 by 4. That's the answer for this problem. Thank you, Poji. This is another good case where we'll be counting the number of minimas in diffraction pattern. Generally YDSE के क्वेश्चन में counting of fringes आता है, diffraction में this is a good case जहाँ पे students confused हो गए थे एग्जाम में when the question was asked. It is maximum diffraction minima by a single slit. So here it says orange light of wavelength 6000 angstrom illuminates a single slit of width 0.6 into 10 to the power minus 4 meter, and it is saying the maximum possible number of diffraction minima produced on both sides of central maxima. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं for diffraction minima on either side of a screen, किसी भी एक साइड की बात करें तो वी राइट b sin theta is equals to n lambda.
सो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है एन लिम्डा बाई बी एंड साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जा सकता व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री। सो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम तो स्मॉल एन का वैल्यू आ जाता है बी बाई लिम्डा। हमने क्या किया, साइन थीटा को 1 डाल दिया, तो साइन थीटा को 1 डालेंगे तो एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी बाई लिम्डा आएगा विच इज इक्वल टू बी। Slit width is 6 into 10 to power minus 5 and here it is 6 into 10 to power minus 7 comes out to be 100. So n should be less than equal to 100. Equality यहाँ पे हम नहीं consider करेंगे because exact 90 degree पे कोई fringe pattern बनेगा ही नहीं. So n should be equals to 99 on either side of a screen. स्क्रीन के किसी भी साइड 99 मिनिमा होंगे तो टोटल मिनिमा ऑन स्क्रीन अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा आएंगे 99 into 2 दोनों साइड, इट इज 198. दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. थैंक यू भोजी. हियर विल बी टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बाय अ सिंगल स्लिट. आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर सेंट्रल मैक्सिमा की रेंज देखें तो इट इज एक्सटेंडेड अप टू फर्स्ट मिनिमा. सो अगर एंगुलर पोजीशन फर्स्ट मिनिमा की थीटा 1 है तो इन दैट केस इसकी एंगुलर विड्थ 2 थीटा 1 होगी. लेट्स डिस्कस अपॉन दिस. इट सेज अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ b इज इल्यूमिनेटेड बाय अ कोरेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. यहाँ पे अगर हमारे पास एक स्लिट है विच इज हैविंग अ विड्थ b और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है. इफ द सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, दिस इज कैपिटल D. तो जो फर्स्ट मिनिमा होगा, we know this angle is theta 1 on either side, so we write sin theta 1 which is approximately theta 1 is equals to lambda by b. n equals to यहाँ पे 1 ले लेते हैं because we use the relation b sin theta is equals to n lambda. Now अगर हम बात करें सेकंड मिनिमा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ if the second and fourth minima in the diffraction pattern are at a distance 1 meter from the slit at 3 centimeter. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड मिनिमा की बात करते हैं so for second minima here we can see if this is second minima and this angle is theta 2, so we can write theta 2 is equals to 2 lambda by b. और अगर हम एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो दिस 2 थीटा 1, थीटा 1 ऊपर और थीटा 1 नीचे. तो अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ आ जाएगी 2 थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई d. सो वैल्यू आ जाता है हमारे पास दिस इज 2 lambda by b multiplied by d. So here if we substitute the values, wavelength हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टली you can use the wavelength is taken as lambda only and in this situation 2 into lambda into capital D is 1 meter and इसका डिस्टेंस 0.3 है तो lambda by b को आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. lambda by b, 2 lambda by b is equals to 0.03. तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ अ सेकेंड मिनिमा, दिस शुड बी इक्वल्स टू थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई d. तो आई थिंक इट इज एग्जैक्टली द सेम वैल्यू 0.03, दैट इज 3 सेंटीमीटर. दैट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. क्योंकि 2 lambda by b का डायरेक्ट वैल्यू 0.03 क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास, तो ये 3 सेंटीमीटर सेम वैल्यू आएगा.